Hello students, good morning. Welcome to the part 4 of series photosynthesis in higher plants. In this video, we will learn about the light reaction and photophosphorylation. Let's start the topic with light reaction. What is the light reaction? Light reaction is an oxidation reaction. Oxidation reaction means in this reaction some molecule will oxidize. So in the light reaction H2 will oxidize into the oxygen. Okay, and जो light reaction है होती कहाँ पर है? Light reaction occurs at the grain of the chloroplast. अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना. ठीक है, यहीं पर क्या होती है? लाइट रिएक्शन. इसके बाद में जो लाइट रिएक्शन है उसको दो और नाम से हम बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज एंड हिल रिएक्शन. In the light reaction and photochemical phase includes light absorption, water splitting, oxygen release and formation of high energy compounds like ATP and NADPH. Okay, in the light reaction many protein complexes are involved. Okay, understand? Next is photosystem. What is the photosystem? Photosystem is the smallest group of pigment molecule. What is the photosystem? Photosystem is the smallest group of pigment molecule. Many pigment molecule comes together and bind with each other with some other protein molecules. Okay, so photosystem क्या है? Photosystem is the smallest group of pigment molecule that take part in the photochemical reaction. ठीक है, to convert the light energy into the chemical energy. मतलब light energy को chemical energy में, chemical energy की कौन सी forms में? ATP and NADPH के अंदर convert करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. उसके बाद में नेक्स्ट दीज पिगमेंट मॉलिक्यूल, अभी हमने जस्ट बात करी कि पिगमेंट्स मॉलिक्यूल का ग्रुप है ये. ठीक है, तो दीज पिगमेंट्स मॉलिक्यूल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस विद इन द photosystem first and photosystem second. If we will talk about the types of photosystem, then we can say that the photosystem are of two types: photosystem first and photosystem second. Okay, photosystem first and photosystem second naming दी गई है वो according to the sequence of their discovery है, not in the sequence of their फंक्शनिंग ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. मतलब जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो पहले डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने, फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो बाद में डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने. नेक्स्ट है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ द hundreds of pigments molecule which bound to the proteins. Okay, and these pigments molecule make the photosynthesis more efficient by absorbing the light of different wavelength. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो वेरियस पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं लाइट को ऑफ द वेरियस वेवलेंथ. ठीक है, if we got the chlorophyll A pigment, okay, so chlorophyll A pigment shows the maximum absorption at the 680 nanometer and 700 nanometer wavelength of light. Okay, so other molecules like chlorophyll B है, xanthophylls, carotenoid shows the absorption of light at other wavelength of light. ठीक है, so we can say कि जो pigments molecule है make the photosynthesis more efficient by absorbing the light of various wavelength. Each photosystem consists of all the pigments molecule except the chlorophyll A molecule, forming the light harvesting system, also called as antenna. Okay, and these chlorophyll molecule will form the reaction center or photocenter. मतलब जो फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड है उन दोनों के अंदर क्या होगा? जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो सब प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. मतलब कि जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर अलग है, फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर अलग है. मतलब है कि जो फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो कुछ अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर क्या करता है? मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करता है. एंड जो फोटोसिस्टम सेकंड है उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करता है. जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है
उसके अंदर जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पर होता है, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। एंड जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है वहां उसमें किस वेवलेंथ, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर क्या होता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो होता है। ओके, समझ में आया। तो अब नेक्स्ट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो डिस्कस करें। देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, मेनी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल विच बाउंड टू द प्रोटीन। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, मेनी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स, जिसमें से कोई एक क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा वो किसका फॉर्मेशन करता है, रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है। हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है विद ईच अदर विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड ये जो कोई एक मॉलिक्यूल है जो कि कौन सा है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, वो क्या है, रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर है। एंड अदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, यहां से क्या आएगी, सनलाइट, लाइट एनर्जी। ओके, आफ्टर दिस जो ये एनर्जी आई, जितनी भी एनर्जी आपको लाइट एनर्जी आई, तो उसकी वजह से जो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से क्या, देखो ये जो इनकमिंग लाइट एनर्जी है, इसकी वजह से क्या हो गया, जो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स है इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। एक्साइट मतलब वो एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं एंड वो कहां पर जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल्स पर, ठीक है। एंड यहाँ से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर ट्रांसफर होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास में। उन जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको कौन एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। एंड यही किसका डायग्राम है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। समझ में आया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। What is the difference between photosystem first and photosystem second? Then we can say first difference कि in the photosystem first maximum absorption कहाँ पर शो होता है, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। एंड फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, लाइट एनर्जी ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर पर। सो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिस्टम फर्स्ट PS first and PS second, photosystem first and photosystem second, photosystem। Okay, so let's start the difference। First difference क्या है, maximum absorption किस wavelength of light पर है, maximum absorption 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। यहाँ पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। ओके, सेकेंड डिफरेंस अगर हम बात करें, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कहां प्रेजेंट होता है, इन द नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना एंड स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स। ओके, एंड जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड्स। अब देखो यहाँ पर हमने दो वर्ड यूज किया है कि अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड एंड स्ट्रोमा थाइलेकोइड। सो व्हाट इज द अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड पार्ट। अगर हम बात करें डायग्राम के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है,
ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या होते हैं, ग्रेनास थाइलेकोइड, एंड ये क्या है ग्रेना, एंड ये क्या है स्ट्रोमा लैमेली। इनको हमने स्ट्रोमा लैमेलीज भी बोला था, स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स भी बोल सकते हो। एंड ये क्या है ग्रेना थाइलेकोइड्स, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रेना होते हैं कैसे अरेंज होते हैं, एक के ऊपर एक। ग्रेना थाइलेकोइड जो है वो कैसे अरेंज है, एक के ऊपर एक, लाइक दिस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके, एक के ऊपर एक अरेंज है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड थाइलेकोइड का ये वाला जो पार्ट है, जो दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है, उन दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थाइलेकोइड। एंड जो कि सेकंड जो पार्ट स्ट्रोमा के अंदर है, जो किसी और थाइलेकोइड से अटैच्ड नहीं है, वो कौन सा है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये जिस पार्ट को मैं ग्रीन से डिनोट कर रही हूँ, ये क्या है, सप्रेस हो रखा है दो थाइलेकोइड के बीच में, ओके। एंड अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, कंप्लीटली फ्री है इन द स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये जो पार्ट ए है जो ग्रीन से डिनोट किया था, वो कौन सा पार्ट होता है, अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना थाइलेकोइड, ओके। एंड जो पार्ट थाइलेकोइड का जो मेम्ब्रेन, जो थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है वो फ्री है इन द स्ट्रोमा, उसको क्या बोलते हैं, नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना, ठीक है। तो ये जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है ये कहां पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर, इस जगह पर। जितने भी मेम्ब्रेन है जो कि स्ट्रोमा में फ्री है थाइलेकोइड की, उन सब पर क्या प्रेजेंट होगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट। एंड जो अप्रेस्ड पार्ट है, लाइक ये वाला। अब नेक्स्ट देखो, जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन रेट P700 पर था, ठीक है। मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन कहां पर था, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। इसीलिए फोटोसिस्टम फर्स्ट को P700 से भी डिनोट करते हैं। सेम इन द फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन कहां पर था, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। इसीलिए इसको किससे डिनोट करते हैं, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। नेक्स्ट डिफरेंस है, जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो नॉट कनेक्टेड टू द वाटर स्प्लिटिंग, बट जो फोटोसिस्टम सेकंड है वो कनेक्टेड होता है किससे, वाटर स्प्लिटिंग से। वाटर स्प्लिटिंग। नेक्स्ट है, जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर फाइनल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो कहां पर होता है, NADP प्लस पर, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH के अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एंड जो फोटोसिस्टम सेकंड है उसके अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां पर होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट पर, ठीक है। यहाँ पर राइट डाउन करना कि फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर is to NADP plus, and in the photosystem second final electron transfer is to the photosystem first. Understood? Next है electron transport. Electron transport first formulated by scientist Hill in 1939. Okay, and what is the electron transport? So electron transport, it is a series of electron carriers over which movement of electron is downhill. Okay, series of electron carriers over which movement of electron is downhill in term of an oxidation, reduction or redox potential, okay, and releasing energy at every step in the electron transport. क्या होता है, at every step energy क्या होती है, release होती है, which is used in generating an electrochemical proton gradient which helps in the process of forming ATP. Okay, जो एनर्जी है एवरी स्टेप पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसके अंदर यूज हो रही है, इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। एंड ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो किसमें हेल्प करेगा, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है, synthesis of ATP, and the process of synthesis ATP from the inorganic phosphate in ADP is known as phosphorylation, ठीक है। तो सिंपली वी कैन से दैट कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसके अंदर हेल्प कर रही है, फोस्फोराइलेशन के अंदर हेल्प करती है। समझ में आया? उसके बाद में है रेडॉक्स पोटेंशियल।
रेडॉक्स पोटेंशियल, यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया है रेडॉक्स पोटेंशियल, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डाउन हिल इन टर्म ऑफ द रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो देखो पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ केमिकल टू अक्वायर इलेक्ट्रॉन एंड देयर बाय बी रिड्यूस्ड। ओके, मतलब क्या है? किसी एक केमिकल की दूसरे केमिकल से इलेक्ट्रॉन को अक्वायर करने की टेंडेंसी का जो मेजरमेंट है ना, वही क्या है? रेडॉक्स पोटेंशियल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एंड मेजर इन द वोल्ट एंड मिलीवोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फोटो फॉस्फोरिलेशन। देखो सिंपली फॉस्फोरिलेशन की बात करें तो फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एटीपी फ्रॉम द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, सो एटीपी का फॉर्मेशन कहां से? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। क्या कहलाता है? फॉस्फोरिलेशन। अब इस प्रोसेस के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यही जो रिएक्शन है अगर वो लाइट एनर्जी का यूज करते हुए हो रही है, ठीक है, इन दिस रिएक्शन इफ लाइट एनर्जी इज यूज्ड देन दिस रिएक्शन इज नोन एज द फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, अंडरस्टैंड? अब ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड सेकंड है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, फर्स्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होता क्या है? इन दिस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ओनली पीएस फर्स्ट इज फंक्शन। ठीक है, पीएस सेकंड विल नॉट फंक्शन इन द साइक्लिक photosphorylation. Only PS first will function and electron is circulated within the PS first and phosphorylation occurs due to the cyclic flow of electrons. Okay, इसके अंदर ओनली क्या है? PS फर्स्ट इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे विद इन द PS फर्स्ट होंगे एंड जो फॉस्फोरिलेशन का स्टेप है वो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा कि एट एवरी स्टेप एनर्जी रिलीज होगी एंड वही एनर्जी किसके सिंथेसिस में यूज होगी? एटीपी के सिंथेसिस में फ्रॉम द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, एंड जो एक पॉसिबल लोकेशन की अगर हम बात करें कि इन द क्लोरोप्लास्ट जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? इन द स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, ए पॉसिबल लोकेशन ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या हो सकती है? स्ट्रोमा लेमिली के अंदर। अब देखो स्ट्रोमा लेमिली के अंदर ही हमने क्यों बात करी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। देखो अगर हम बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या होता है? ओनली पीएस फर्स्ट विल इंक्लूडेड। ठीक है, पीएस सेकंड विल नॉट इंक्लूडेड एंड पीएस फर्स्ट कहां पर प्रेजेंट होता है? एट द नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा लेमिली एंड ग्रेना थाइलेकोइड के। ठीक है, एंड जो पीएस सेकंड है वो कहां पर होता है? अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना थाइलेकोइड का। अब अगर हम बात करते हैं कि जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? बोथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, बट ओनली इन द स्ट्रोमा लेमिनी क्या है? ओनली पीएस फर्स्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, इसीलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां पर होता है? ओनली इन द स्ट्रोमा लेमिली। एंड इसके अलावा सेकेंड रीजन क्या है कि जो स्ट्रोमा लेमिली है वहां पर क्या होता है? एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है। जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है वहां पर तो क्या होता है? एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, बट इन द स्ट्रोमा लेमिली एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इज एब्सेंट। दैट्स द रीजन कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा लेमिली। समझ में आया? नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमने एक सिंपल डायग्राम से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को डिस्कस किया। अब अगर इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले जो P700 है फोटोसिस्टम फर्स्ट का, जो क्या है P700 रिएक्शन सेंटर है, वहां पर क्या आएगी? लाइट एनर्जी। ठीक है, जैसे उस पर लाइट एनर्जी आएगी वहां का जो इलेक्ट्रॉन है, जो P700 रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होगा? एक्साइट होगा एंड ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां पर जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन
एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में। एंड इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, एक आयरन सल्फर प्रोटीन है। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर होगा, Fd के पास में। Fd से ये इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर होता है, साइटोक्रोम B6 पर। साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर होता है, प्लास्टोक्विनोन पर। अब प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होगा, साइटोक्रोम F पर। साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर होता है, प्लास्टोसाइनिन पर। प्लास्टोसाइनिन से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अगेन कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, रिएक्शन सेंटर पर। अब जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, ये इन द नॉर्मल स्टेट है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, सबसे पहले कहा गया एफआरएस के पास में। एफआरएस एक प्रोटीन जो कि क्या है, एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, ठीक है, वहां पर। उसके बाद में एफडी से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोक्विनोन। अब देखो ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये क्या करता है, एट द सेम टाइम जब इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, कहां से, साइटोक्रोम B6 से, ये स्ट्रोमा से भी क्या करता है, दो H+ को लेता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है एंड उनको कहां पर ट्रांसफर करता है, दो H+ को कहां पर ट्रांसफर करता है, इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है, इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। देन यहाँ से ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, साइटोक्रोम F पर, ठीक है। साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन पर, प्लास्टोसाइनिन से अगेन कहां पर, रिएक्शन सेंटर पे, जहां से ये स्टार्ट हुए थे इलेक्ट्रॉन वहीं पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, ठीक है, तो उससे किस स्ट्रक्चर का, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, ओनली एटीपी का। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएटेड, ठीक है, जो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है ना, उसकी वजह से यहाँ पर किसका सिंथेसिस होगा, ओनली एटीपी का, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी। अंडरस्टैंड। अगर इसमें कोई आपको डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में उसमें क्या इन्वॉल्व है, ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकंड इन्वॉल्व नहीं है, सो वी कैन से दैट कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विल अकर ओनली एट बियॉन्ड लाइट 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, ओके। जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ की लाइट होगी वहीं पर क्या प्रेजेंट होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके अंदर क्या है, ओनली पीएच फर्स्ट इन्वॉल्व है एंड पीएच फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700, ठीक है। देखो अगर हम बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व है, ओनली पीएच फर्स्ट, ठीक है। ओनली पीएच फर्स्ट अगर इन्वॉल्व है तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या होगा, P700, ठीक है। ये क्लोरोफिल के पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल के अंदर P700, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, लाइट एनर्जी, जैसे ही लाइट एनर्जी रिएक्शन सेंटर पर आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ पर जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि पीएच फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, या फिर बोल दे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तो उसी टाइम पर किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया ये। Next है non-cyclic photosphorylation. Okay, so in the non-cyclic photosphorylation, when two photosystem first and photosystem second work together, then the process is known as the non-cyclic photosphorylation. Okay, and
Both the photosystem first and photosystem second are connected to an electron transport chain consisting of cytochrome. Okay, in the non-cyclic photophosphorylation, both the photosystem first and second involved and both are connected through the electron transport chain. Okay, जो consisting of cytochrome. ठीक है, and जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें क्या है, दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है. ठीक है, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो सबसे पहले रिसीव करता है लाइट को. आफ्टर दिस फोटोसिस्टम फर्स्ट विल रिसीव द लाइट. ओके, एंड फोटोसिस्टम सेकंड रिसीव द लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ. ठीक है, एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट रिसीव द लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ. ओके, उसके बाद में अब देखो जो फोटोसिस्टम सेकंड है उसका जो रिएक्शन सेंटर है कौन सा, P680, वो क्या करता है, लाइट को रिसीव करता है. ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे एंड एक्साइट होंगे. यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ पर जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट में. ठीक है, अब फोटोसिस्टम फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर है P700 वो अगेन लाइट एनर्जी को रिसीव करता है. ठीक है, कौन सी लाइट एनर्जी को, वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर. ठीक है, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होगा एंड कहाँ पर ट्रांसफर होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन अगेन कहाँ पर ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में गए, यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होते हुए कहाँ पर आए, फोटोसिस्टम फर्स्ट में. अगेन फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, एक्साइट होकर कहाँ पर गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये इलेक्ट्रॉन जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्या है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, NADP प्लस. ठीक है, NADP प्लस पर ये इलेक्ट्रॉन गए एंड NADP प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, NADPH प्लस के अंदर. ठीक है, तो फाइनली फॉर्मेशन किसका होगा यहाँ पर, NADPH प्लस का. एंड ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रॉम द ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का. ठीक है, अब देखो दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द फोटोसिस्टम फर्स्ट अपिंग टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटोसिस्टम सेकंड टू द downhill this electron to electron transport chain to photosystem first and again exciting this electron and transferring this electron to the again primary electron acceptor of photosystem first to the downhill this electron to electron transport chain to NADP plus and reduce the NADP plus to NADPH plus H plus. ठीक है, this is called the Z scheme due to its characteristic shape. ठीक है, अब इस पूरी स्कीम को हमने क्या बोला है, Z scheme due to its characteristic shape. And this shape is formed when all the carriers, जो all the electron carriers are placed in a sequence of रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल. जब जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है उनको हम प्लेस कर दें इन द सीक्वेंस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल. ठीक है, तो हम किसका फॉर्मेशन होता है, जेड स्कीम का फॉर्मेशन होता है. समझ में आया ये. अब इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है जो इन्वॉल्व होते हैं उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले अब अगर हम इसके प्लेस की बात करें कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो कहाँ पर होगा, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पर होगा, ग्रेनाक थाइलेकोइड के अंदर. तो अब थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. देखो ये है एक थाइलेकोइड. ठीक है, थाइलेकोइड की ये मेम्ब्रेन है, ये ल्यूमन है एंड ये क्या है, स्ट्रोमा. ठीक है, ये स्ट्रोमा है, ये ल्यूमन.
और ये क्या है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। अब थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में ही क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या वर्क करता है, फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या है, P680। ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ पर सनलाइट रिसीव होगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ पर जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइट होकर कहाँ जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि क्या है, पियोफाइटिन। पियोफाइटिन से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर ट्रांसफर होंगे, प्लास्टोक्विनोन पर। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर ट्रांसफर होंगे, प्लास्टोक्विनोन से। और ये जो प्लास्टोक्विनोन है, एट द सेम टाइम जब व्हेन it receive electron from the pheophytin, it also receive 2H plus ions from the stroma. Okay, ये जो प्लास्टोक्विनोन है किसके अंदर कन्वर्ट होता है, PQH2 के अंदर। PQH2 नाउ ये मूव करता है फ्रॉम द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की स्ट्रोमा साइड से ह्यूमन साइड की तरफ। ठीक है, PQH2 यहाँ पर मूव करके आया। ओके, अब जो PQH2 है इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो कहां पर जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास में। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कौन सा, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स पर। एंड ये जो यहाँ से 2 H प्लस आयन इसने एक्सेप्ट किए थे, ये 2 H प्लस आयन ये कहां पर ट्रांसफर कर देगा, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, ह्यूमन के अंदर। एंड ये जो PQ अगेन ये यहाँ पर नॉर्मल PQ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर ट्रांसफर होते हैं, प्लास्टोसाइनिन में। ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये क्या होता है, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। इस प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर होंगे, फोटोसिस्टम फर्स्ट पर। ठीक है, अब जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है उसका जो रिएक्शन सेंटर है P700 अगेन क्या करता है, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है ऑफ द 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। ठीक है, एंड यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगेन एक्साइट होता है। एंड ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर होता है, FRS पर। ठीक है, अभी इससे जस्ट पहले हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था ना, कि जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है उसके अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या था, FRS। ठीक है, तो यहाँ पर वही FRS से FD। अब यहाँ से ये जो फाइनल 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर ट्रांसफर होंगे, NADP प्लस को। ठीक है, एंड ये जो NADP प्लस है ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंड 2 H प्लस स्ट्रोमा से एक्सेप्ट करते हुए किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH प्लस के अंदर। ठीक है, एंड इस रिएक्शन के अंदर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज। अब देखो ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है इसके नाम में ही है कि ये NADP को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो NADP प्लस है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, NADPH प्लस H प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस जो इलेक्ट्रॉन है उसका लॉस हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन एक बार PS सेकंड फोटोसिस्टम सेकंड से निकल चुका है वो वापस रिटर्न बैक फोटोसिस्टम सेकंड को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब फोटोसिस्टम सेकंड से ही अटैच यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर स्प्लिटिंग। ठीक है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ना उसमें क्या होता है कि फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है ना उससे अटैच्ड क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर जो H2 है वो स्प्लिट होकर किसके अंदर कन्वर्ट होता है, 2H प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस O2 के अंदर। ठीक है, हाफ O2, एक H2O जो है वो स्प्लिट होकर किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है वही किसको मिलते रहेंगे, कंटिन्यूअस फोटोसिस्टम सेकंड को। एंड यहाँ पर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके अंदर क्या होता है, कीमो ऑस्मोसिस भी होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन द ल्यूमेन कंटिन्यूअस जो H प्लस आयन है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ ड्यू टू द एक तो जो प्लास्टोक्विनोन है वो स्ट्रोमा से 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, अगेन ये जो एक वाटर की स्प्लिटिंग से क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन ह्यूमन को मिल रहा है। नेक्स्ट थर्ड, ये जो NADP प्लस है ये जब रिड्यूस होकर NADPH प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन प्लस स्ट्रोमा में से यूज कर रहा है। तो एज कंपेयर टू द ह्यूमन स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन अगेन कम हो रहे हैं। तो जब एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मतलब एक कंप्लीट अगर हमने इलेक्ट्रॉन साइकिल बनाया है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एज कंपेयर टू द ह्यूमन स्ट्रोमा में क्या हो रहे हैं, 6 हाइड्रोजन
कम हो रहा है, ठीक है, या फिर वी कैन से दैट कि ल्यूमेन के अंदर क्या हो रहा है 6H प्लस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कंटिन्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के क्रिएट होने की वजह से ये यहाँ पर क्या होगा एटीपी का भी सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एटीपी का सिंथेसिस होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड। एंड यहाँ पर क्या होगा कि जो H प्लस आयन है वो ल्यूमन से स्ट्रोमा में मूव करेंगे, ठीक है। एंड इसी मोमेंट के टाइम पर क्या होता है कि एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से किसका फॉर्मेशन होता है एटीपी का, ठीक है। समझ में आया ये कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब देखो ड्यू टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट सिंथेसिस ऑफ द एटीपी फ्रॉम द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, डिटेल में हम स्टडी करेंगे इन द इनकमिंग वीडियोस, ओके। एंड समझ में आया कंप्लीट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता क्या है कि फ्रॉम द पीएच सेकंड जो फोटोसिस्टम सेकंड है वहां से क्या होते हैं कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं एंड उन्हीं मूव इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए वहां पर क्या आता है वाटर स्प्लिटिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो the electron that was moved from the photosystem second replaced by the electron available due to the water splitting। मतलब जो फोटोसिस्टम सेकंड है फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मूव होते रहते हैं एंड इन्हीं मूविंग इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है वाटर स्प्लिटिंग प्रेजेंट होती है। जो H2 होता है वो स्प्लिट होकर किसमें कन्वर्ट होता है H प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस O2 के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो वाटर स्प्लिटिंग है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो वाटर स्प्लिटिंग होती है वो अकर्स एट द ग्रेना टुवर्ड्स द ल्यूमन साइड। जो ग्रेना है उसकी मेम्ब्रेन कौन से साइड पर ल्यूमन साइड पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो फोटोसिस्टम सेकंड से क्या होता है अटैच्ड रहता है O2, यहाँ पर क्या है फोटोसिस्टम सेकंड उससे ये क्या होता है अटैच्ड रहता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करें कि इन डिटेल जो वाटर स्प्लिटिंग है उसकी रिएक्शन कैसे होती है, तो सबसे पहले 4H2O जो होते हैं वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के अंदर किसमें कन्वर्ट होते हैं 4H प्लस प्लस 4OH माइनस के अंदर। अगेन ये जो 4OH प्लस है ये किसके अंदर कन्वर्ट होंगे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 प्लस 2H2O के अंदर। अब इसको हम इन दोनों रिएक्शन को समराइज करके कैसे राइट डाउन कर सकते हैं 2H2O इज इक्वल्स टू 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब देखो दिस क्रिएट ऑक्सीजन जो ये यहाँ पर ऑक्सीजन बनी है वो क्या है वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस है, ओके। समझ में आया कंप्लीट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स you can ask me in the comment section.